अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट होने लगे। 18। 18 है आपको। हाँ, आज है प्री प्रोसेटिक जूनियर ना, प्री ऑपरेटिव जूनियर ना। हाँ, आपका 12 टू 1 है। 18। वो जो खड़े हुए वो D18 का है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So secretary, can you hear me all? ओके। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ मटेरियल्स। तो स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, finishing and polishing is basically done by the mechanism of abrasion. What is abrasion? Abrasion is defined as the wearing away of a surface. फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग का मैकेनिज्म ये है कि फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग में हम एब्रेजन के ज़रिए स्टेप्स अचीव करते हैं. नाउ दिस intentionally created abrasion is basically achieved by different steps. इसमें different abrasives use हो सकते हैं और there is two types of abrasion that is used during the process of finishing and polishing. It can be two body abrasion or it can be three body abrasion. Two body abrasion का आपको मैंने बताया था जिसमें two surfaces involved हो. Substrate, the surface that needs to be polished, that can be a tooth restoration, that can be tooth surface, and the other material that is used for abrading that substrate surface. So इस केस में it will be called two body abrasion, whereas in three body abrasion जिसकी फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल में टूथ ब्रशिंग है, उसमें थ्री बॉडी एब्रेजन में हम ये करते हैं कि उसमें थ्री बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं. नंबर वन, द सबस्ट्रेट, द सरफेस विच नीड्स टू बी पॉलिश्ड. Number two, the instrument that is used for finishing or polishing of that surface, and an abrasive material that is used between the instrument and the substrate surface. That is called थ्री बॉडी एब्रेजन. जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, दिस इज पॉलिशिंग ऑफ टीथ आफ्टर द स्केलिंग. पॉलिशिंग में क्या होता है, आपका ये एक टूथ सरफेस है दैट नीड्स टू बी पॉलिश्ड. आपका जो सी ग्रीन स्काई ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज सेकेंड बॉडी. एंड द थर्ड बॉडी, आपके जो ब्रश है, इस ब्रश के ऊपर एक पेस्ट लगी हुई है, दैट एक्ट्स एज अ थर्ड बॉडी. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ थ्री बॉडी एब्रेजन. ओके. अगर एब्रेसिव मटेरियल, जो हमने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स पढ़े थे, एब्रेसिव मटेरियल्स, वो एब्रेसिव मटेरियल आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर बॉन्ड हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्लिंग किया, वो अलग से मूव ना करे दोनों बॉडीज़ के दरमियान में, तो उसको भी हम टू बॉडी एब्रेजन कहेंगे. This is the armamentarium that is used for finishing and polishing. Finishing is basically the process by which we create and shape the contours of the restoration or the surface that needs to be finished and polished. And polishing is the process by which we give the glossy look to the restoration or the material. For finishing, fluted carbide burrs, diamond burrs, stones, coated abrasive discs and strips are used. Whereas for polishing pastes, soft and hard polymeric cups, points and wheels, polishing brushes, and woven cotton fabric is basically used. So
On the left side of this picture, you can see these are burrs. Burrs are used in dentistry for cutting and finishing of tooth and restorations. Basically इसके दो parts होते हैं. The one part is the head, the working end, and the other part, the steel part जो आपको shining नज़र आ रहा है, that is non-working part that is inserted into the instrument, which in this case is the handpiece. So इसका आधा पार्ट हैंड पीस के अंदर चला जाता है, जो आपको सेंटर वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है ये हैंड पीस है, और इसका हेड बाहर रहता है जिससे हम कटिंग करते हैं या पॉलिशिंग करते हैं. ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर यू कैन सी a tooth restoration is being polished. Talking about the burrs, different types of burrs are used in dentistry. They can be tungsten carbide burrs or diamond burrs. अच्छा, टंगस्टन कार्बाइड बर्स में लेफ्ट साइड पे टॉप मोस्ट पिक्चर लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज 16 फ्लूटेड. इनमें 16 फ्लूट्स बनी हुई है. 16 फ्लूट्स आप देखो, इसमें एक लाइंस नज़र आ रही होंगी. सो दीज 16 फ्लूट्स वाला जो टंगस्टन कार्बाइड बर होता है दैट गिव्स स्मूदर फिनिश and it removes the material very slowly. Whereas जिसमें 8 फ्लूट्स बनी हुई होंगी, जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो 8 फ्लूट्स हैं, इसलिए उसमें अलग से आपको पिक्चर में नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये 8 फ्लूटेड टंगस्टन कार्बाइड बर है. इट गिव्स लेस स्मूदर फिनिश and it rapidly starts moving the material. सेकेंड इज डायमंड में हमारे पास फाइन ग्रेड होता है, मीडियम ग्रेड होता है एंड कोर्स ग्रेड होता है. एज द नेम से फाइन ग्रेड जो होगा वो स्लोली रिमूव करेगा मटेरियल को एंड विल गिव अ स्मूथ सरफेस फिनिश. मीडियम ग्रेड जो होगा वो मॉडरेटली रिमूव करेगा मटेरियल को एंड इट विल गिव द सरफेस फिनिश दैट विल बी इन बिटवीन द फाइनर diamond burr finish and the coarse grit diamond burr finish. Coarse grit diamond burr रैपिडली रिमूव करेगा मटेरियल को एंड इट विल गिव अ रफर सरफेस फिनिश. आप लोगों को इसकी पिक्चर से भी नज़र आ रहा होगा, इसकी बहुत रफ सी सरफेस है. इसमें इंडेंटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत रैपिडली रिमूवर को, क्योंकि इसके शार्प एजेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, बहुत रैपिडली रिमूवर को रिमूव करेगा मटेरियल को और रेस्टोरेशन के मटेरियल को एंड इट विल गिव a rougher surface that is indicated by the name. It is a coarse grit diamond burr. Okay, different types of burrs that are used in dentistry. The carbides or diamond burrs. सबसे ज़्यादा strongest, hardest diamond burr होते हैं. They are used for the purpose of cutting of tooth. आपकी क्राउन प्रिपरेशन के लिए, जब क्राउन प्रिपरेशन करनी है उसके लिए डायमंड बर यूज़ होते हैं. डायमंड बर जब आप केरियस लियन को दांत के अंदर से रिमूव कर देते हो तो कैविटी प्रिपरेशन के लिए डायमंड बर यूज़ होते हैं. और सर्जरी में डायमंड बर कैन बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द बोन. उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आते हैं द लेसर हार्डर आर कार्बाइड बर्स. कार्बाइड बर्स के बाद जो नेक्स्ट आते हैं दे आर स्टेनलेस स्टील, और उसके बाद जो लास्ट में दे आर स्टील. सो 4 टाइप्स ऑफ बर्स आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री: डायमंड बर्स, कार्बाइड बर्स, स्टेनलेस स्टील बर्स एंड steel bars. So carbides are further divided into 3 types. Carbide burrs can be silicon carbide burrs, boron carbide burrs and tungsten carbide burrs. The silicon carbide burrs silicon और carbon के mixture से बनते हैं. Boron carbide burrs are achieved by the combination of boron and carbon, whereas tungsten carbide burrs are formed by heating tungsten with carbon at very high temperatures, around 1300 to 1600 degrees centigrade. And the other metals which are added in tungsten carbide burrs are iron, nickel, titanium and silicon.
In this way, the head, the working end of the tungsten carbide burr is formed. उसके बाद इस burr को सोल्डर कर दिया जाता है एक स्टील के शाफ्ट के साथ, जो आपको नॉन वर्किंग एंड दिखाया था, जो आपके हैंड पीस आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लेस करते हैं, सो दिस burr कैन बी रोटेटेड. Tungsten carbide burrs can also be used for cutting tooth surfaces. Tungsten carbide burr का फ़ायदा ये होता है कि it has the capacity to maintain efficiency at very high temperatures. Because when cutting is done, cutting of tooth surface, or when finishing of a restoration is done, uh, because of this abrasive action, the temperature is increased. This temperature can harm the gingival tissue or the tooth structure. So, to avoid this elevated temperature disadvantages, tungsten carbide burr is preferred because it is a hard compound and it can maintain its efficiency even at elevated temperature. Okay, all these burrs are sterilized by a mixture of water with sodium bicarbonate. Other chemicals can be used, but other chemicals are capable of dissolving the components of these burrs. For example, in tungsten carbide burr, they are capable of dissolving the carbon, and efficiency of tungsten carbide can be decreased in this way. So, पानी के अंदर बेसिकली हम सोडियम बाइकार्बोनेट that is mixed, and it is used for the sterilization of these instruments, for the washing of these instruments, and after the washing we can autoclave these burrs. ये हमने लास्ट टाइम में देखे थे फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एब्रेजन. इट कैन बी हार्डनेस, साइज, शेप, प्रेशर, स्पीड एंड लुब्रिकेशन. साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एब्रेशन होगी, उतना ज़्यादा रेट होगा एब्रेशन का. जितना छोटा पार्टिकल होगा एब्रेसिव का उतना रेट कम हो जाएगा एब्रेशन का. लाइकवाइज in terms of hardness, the abrasive particle must be harder than the surface being abraded. आप जिस रेस्टोरेशन को फिनिश करने लगे हो उसके लिए आपने जो एब्रेसिव यूज़ करना है वो एब्रेसिव शुड बी हार्डर देन द हार्डनेस देन द एब्रेसिव एक्शन ऑफ दैट रेस्टोरेशन. क्योंकि अगर आपका एब्रेसिव ज़्यादा हार्डर होगा तो वो इजीली एब्रेड करेगा रेस्टोरेशन की सरफेस को. अगर वो कम हार्डर होगा सरफेस से तो वो उसको एब्रेड नहीं कर सकेगा. सो द हार्डनेस ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल शुड बी हायर देन द surface to be abraded, the surface to be polished. Okay, spherically shaped particles cause lesser abrasion as compared to irregularly shaped particles. इसका मतलब ये है कि spherically shaped particles होंगे abrasive के. We are talking about abrasive particles जो abrasion करेंगे, जिससे हम finishing करेंगे किसी भी material की या restoration की. ये पार्टिकल्स एब्रेसिव पार्टिकल अगर स्फेरिकल होंगे तो उनका एब्रेसिव एक्शन कम होगा. अगर इरेगुलरली शेप्ड होंगे तो इनका एब्रेसिव एक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इरेगुलरली शेप्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनके शार्प एजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्फेरिकली शेप्ड एब्रेसिव पार्टिकल. आप लोग खुद दो शेप्स कंसिडर करके देख लो. अगर एब्रेसिव पार्टिकल राउंडेड है तो ड्यूरिंग द एब्रेशन, ड्यूरिंग द स्लाइडिंग वो रोल कर जाएगा दोनों सरफेसिस के दरमियान में, और दोनों सरफेस के दरमियान में रोल ही करता रहेगा और वो सरफेस को एब्रेड नहीं कर सकेगा. उसके मुकाबले में स्फेरिकली शेप्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स वो कम रोल करेंगे, वो थोड़ी बेहतर एब्रेजन करेंगे. लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम यूज़ कर रहे हैं इरेगुलरली शेप्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स, उनके इरेगुलरली शेप्ड
पार्टिकल्स के कटिंग एजेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज दीज आर इरेगुलरली शेप्ड, दे आर नॉट इन अ स्पेसिफिक शेप, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्रेड कर सकेंगे सरफेस को. मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रेशर. ओके, जितना हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एब्रेजन का रेट होगा, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग होगी, उतनी ज़्यादा पॉलिशिंग होगी. बट द डिसएडवांटेज इज़ कि प्रेशर अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हीट भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी. सो a moderate pressure is used during the process of finishing and polishing, because excessive pressure can cause higher abrasion rate because of the abrasive particles, they cut deeper into the surfaces. जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा रेट होगा एब्रेशन का. The abrasive particles will be able to cut deeper into the surface, but they will increase the temperature as well. So a moderate pressure is used. We cannot exceed the pressure from a limited numerical value, right? नेक्स्ट इज लुब्रिकेशन. ओके, जैसे लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि जैसे जैसे हम डिफरेंट, जैसे पार्टिकल साइज हमने इरेगुलरली शेप पार्टिकल साइज रख लिया एब्रेसिव पार्टिकल्स का, और हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ऑब्वियसली अगर हीट प्रोड्यूस होनी है, अगर हम प्रेशर थोड़ा कम भी करेंगे तो एब्रेशन की वजह से वैसे भी एब्रेसिव एक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. टू कंपेंसेट फॉर दैट हीट we use lubricating agents in combination, so this heat can be compensated and the tooth structure and gingival tissue can be saved from heat thermal effects of this abrasive action. For this purpose, lubricating agents like water, mouthwash, fluoride solutions, normally it is sodium fluoride that is used, glycerine, alcohol, it is used in combination with the abrasive agent. आपका जो एब्रेसिव मटेरियल है दैट इज़ इन द पाउडर फॉर्म नॉर्मली, तो उस पाउडर में थोड़ा सा इनमें से कोई भी लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ताकि जब वो एब्रेसिव मटेरियल एब्रेजन करे तो जो हीट प्रोड्यूस हो उसे कंपेंसेट किया जा सके. जैसे हम टूथ कटिंग कर रहे होते हैं, तो टूथ कटिंग में साथ साथ हैंड पीस से वाटर भी निकल रहा होता है, ताकि उस हीट को कंपेंसेट किया जाए जो ड्यूरिंग द कटिंग एक्शन प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज स्पीड. इट इज अ रेट एट विच पॉलिशिंग डिवाइस इज रोटेटिंग. मतलब द स्पीड इज कंट्रोलेबल, वी कैन एडजस्ट इट टू specific value. Like pressure, the speed at which the abrasive is applied will increase the rate of abrasion. Speed जैसे जैसे ज़्यादा होगी abrasion वैसे वैसे ज़्यादा होगी. abrasion ज़्यादा होगी तो temperature भी ज़्यादा होगा. So higher speed directly makes the tooth or the restoration to be finished at elevated temperatures. Any questions so far? ओके उसामा, हमें कैसे पता चलेगा कि रेस्टोरेशन ज़्यादा हार्ड है? वी नो दैट एनामल इज़ हार्डर देन डेंटिन. जब हम एनामल के ऊपर हमने एनामल की फिनिशिंग करनी है ड्यूरिंग द पॉलिशिंग और ड्यूरिंग द जनरल फिनिशिंग, अगर एनामल है तो एनामल के लिए हम हार्डर मटेरियल यूज़ करेंगे क्योंकि एनामल की हार्डनेस ज़्यादा है. तो एनामल से कम हार्डनेस है डेंटिन की, तो डेंटिन के लिए हम कम हार्डर मटेरियल यूज़ कर लेंगे. जो आप लोगों को पीछे एब्रेसिव्स की डिटेल्स पड़ी थी उससे पता चलेगा कि कौन सी एब्रेसिव मटेरियल सबसे ज़्यादा हार्ड है, कौन सा कम हार्ड है, कौन सा मॉडरेट है. जनरली वी नो ग्लास आइनोमर सीमेंट की फिलिंग्स दे आर लेस हार्डर, उसके लिए हम लेस हार्डर यूज़ करेंगे एब्रेसिव मटेरियल.
कंपोजिट इज़ क्वाइट हार्डर, उसके लिए हमें ज़्यादा हार्डर यूज़ करने का। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से उनकी कॉम्पोजिशन से पता चलेगा, बिकॉज हमें रेस्टोरेशंस तो देयर आर फ्यू रेस्टोरेशंस जिनकी हार्डनेस हमें पता है। मटेरियल हमने कौन सा सिलेक्ट करना है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, कंडीशंस लिखी होती हैं, टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, तो वी कैन रीड फ्रॉम देयर और वी कैन go into the details of the composition of that abrasive to have an idea it is harder or less harder than the restoration. Okay, वाई वी पॉलिश, पॉलिशिंग हम क्यों करते हैं? फिनिशिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग बोथ आर बेसिकली अचीव्ड इन डेंटिस्ट्री बाय द मैकेनिज्म ऑफ एब्रेजन। और एब्रेजन दो तरह की होती है, 2 बॉडी एब्रेजन एंड 3 बॉडी एब्रेजन। 3 बॉडी एब्रेजन में आपका एब्रेसिव मटेरियल दोनों सबस्ट्रेट और इंस्ट्रूमेंट के दरमियान में रोल करता है और उनके दरमियान में मोबाइल होता है, फ्री होता है। और अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स आपके एब्रेसिव मटेरियल्स को बॉन्ड कर देते हैं किसी पेपर के ऊपर, किसी डिस्क के ऊपर, और उस डिस्क को डायरेक्टली जब पॉलिशिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं तो दैट विल बी 2 बॉडी एब्रेशन, क्योंकि कोई भी एब्रेसिव मटेरियल, कोई भी पार्टिकल दोनों सर्फेसिस के दरमियान में फ्रीली मोबाइल नहीं है। फिनिशिंग हम कॉन्टूर देने के लिए करते हैं, उसको शेप देने के लिए करते हैं रेस्टोरेशन को या किसी भी मटेरियल को। पॉलिशिंग हम उसकी ग्लॉसी अपीयरेंस के लिए करते हैं हम। और पॉलिशिंग करते क्यों है? टू रिड्यूस एडहेजन। एडहेजन क्या है? एडहेजन इज बेसिकली attraction of the particles, of the surface particles of a material with which the force with which it can attract other materials. तो आप लोग जब रेस्टोरेशन को या टूथ को पॉलिश करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि उसकी एडहेजन कम कर दें। उसके साथ जो आपके डाइटरी फूड्स हैं उनमें से कोई चीज़ क्लिंग ना करे, वो जुड़े नहीं। अगर पॉलिश नहीं किया होगा तो उसके साथ चिपक सकती है और दांत को फर्दर नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसको पॉलिश करना ज़रूरी होता है टू रिड्यूस एडहेजन, प्लस टू स्मूथ द सरफेस, प्लस टू इंक्रीज एस्थेटिक्स। ऑब्वियसली पॉलिशिंग से ग्लॉसी लुक आएगी, ग्लॉसी लुक आएगी तो इट विल लुक गुड एस्थेटिक, and to reduce the tarnish and corrosion. In case of metal processes, in case of metal surfaces or metallic materials, हम उसकी अगर पॉलिशिंग नहीं करेंगे तो उसकी रफ surfaces पे there are more chances for oxygen to accumulate and cause corrosion. So to reduce tarnish and corrosion in case of metallic appliances, we polish the surfaces. Okay, what happens during the polishing? Basically, polishing procedure में ये होता है कि a layer of material is removed by abrasive action. जैसे जैसे हम abrasion करते जाते हैं एक एक layer remove होती जाती है। जैसे जैसे हम polish करते जाएंगे उसकी surfaces remove होती जाएंगी, be it tooth surface or be it restoration surface. Okay, consider here that it is a tooth surface or a restoration surface. In case of a restoration, उसको जैसे जैसे हम पॉलिश करते जाएंगे उसकी एक एक लेयर उतरती जाएगी, तो हम बेसिकली उसमें एब्रेजन करके उसकी एक एक लेयर को उतार रहे हैं। The scratches become smaller and smaller until they are smaller than the wavelength of visible light. हम उसके स्क्रैचेस इतने कम जब हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता हम फाइनर से फाइनर एब्रेसिव मटेरियल यूज़ करते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी सरफेस को पॉलिश करते जाते हैं तो जैसे जैसे उसके स्क्रैचेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, जैसे जैसे स्क्रैचेस इतने कम हो जाते हैं कि वो विजिबल लाइट की वेव लेंथ दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर उससे भी कम हो जाते हैं, तो वो विजिबल आई से नज़र नहीं आते। सो दैट इज़ द स्टेज when the surface starts appearing shiny. उसमें जब हमें शाइनी एंड ग्लॉसी सरफेस नज़र आ रही होती है उसके ऊपर स्क्रैचेस होते हैं, बट दे आर सो स्मॉलर इन साइज, smaller than the wavelength of the visible light, that we cannot see that. In short, the smaller the size of the scratches, the shinier the surface will be. जितने scratches कम होते जाएंगे surface उतनी shiny appear होगी. Do's of polishing.
Okay, you all know that all materials and devices are potentially harmful to soft tissue. अब जो भी materials use कर रहे हो, obviously all materials and devices have got some can be minute or larger side effects. So what you need to do during polishing is to avoid pulpal trauma and amalgam deterioration by using slow speed, moderate to light pressure, and adequate cooling when necessary. Um, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग में एब्रेसिव एक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से पल्पल ट्रॉमा हो सकता है, अमेलगम डिटीरियोरेट हो सकता है, डिटीरियोरेट ऐसे हो सकता है कि उसके पार्टिकल्स अलग अलग होना शुरू हो सकते हैं, उसकी सरफेस इतनी एब्रेड हो सकती है कि वो अंदर से पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएं, बिकॉज बेसिकली तो मर्क्यूरी और आपके सिल्वर्टीन अलॉय का मिक्सचर है ना, तो ज़्यादा उसकी पॉलिशिंग करेंगे, ज़्यादा फिनिशिंग करेंगे तो उसके पार्टिकल्स कुछ अलग भी हो सकते हैं. सो ऑल दिस इज अवॉइडेबल इफ़ यू यूज़ स्लो स्पीड हैंड पीस. दैट इज़ हमें हाई स्पीड हैंड पीस यूज़ नहीं करना, जो स्लो स्पीड हैंड पीस यूज़ करना है उसको बहुत स्लो स्पीड में यूज़ करना है. जो आपको मैंने दिखाया था कि बर को एक हैंड पीस के अंदर प्लेस करते हैं. बर इज़ दैट एब्रेसिव मटीरियल एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू होल्ड दैट बर इज़ द हैंड पीस. तो उस हैंड पीस की स्पीड एडजस्टेबल होती है, एक तो उसे स्लो स्पीड में यूज़ करना है, दूसरा मॉडरेट टू लाइट प्रेशर अप्लाई करना है, हाई प्रेशर अप्लाई नहीं करना. प्लस अ कूलेंट इज यूज्ड, जो एक साथ साथ वाटर स्प्रे निकल रहा होता है उसमें, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी ड्यूरिंग द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, ताकि एक्स्ट्रा दांत हीट अप ना हो जाए. Cementum and dentine abrade easily as compared to enamel, because cementum and dentine structure is less harder than that of enamel. Next is air powder polishing. बेसिकली एयर पाउडर पॉलिशिंग में आप लोग नाम से याद रखना, इसमें एक तो एयर होगी, एक पाउडर होगा द पॉलिशिंग पाउडर, प्लस इसमें वाटर होगा. इन तीनों चीज़ों को कंप्रेस्ड फॉर्म में हम एक निकालते हैं दैट अपीयर्स एज अ स्प्रे. द एयर पाउडर पॉलिशिंग combines the compressed air, water, and sodium bicarbonate, which is one type of polishing powder, into a spray that uses kinetic energy to propel the powder polishing particles to the smooth surface. इस एयर, वाटर और इस पाउडर को कंप्रेस करने की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी pushes the powder towards the tooth surface when it is used in the form of a spray. These are air polishing powders which are normally used. It can be sodium bicarbonate, aluminium trihydroxide, glycine powder, calcium carbonate, and calcium sodium phosphosilicate. You'll have to memorize all these. There is no explanation about that. Now, what are the contraindications of air powder polishing? तो एयर पाउडर पॉलिशिंग में क्या यूज़ हो रहा था, नॉर्मली एक टाइप जो थी पाउडर की वो थी सोडियम बाइकार्बोनेट. तो हम ऐसे पेशेंट्स पे यूज़ नहीं करेंगे जिन पेशेंट्स को उनके फिजिशियन ने सोडियम डाइट से मना किया हुआ है. दे कैन बी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और any other patient that has been restricted by the physician from the sodium diet. ऐसे पेशेंट में हम नहीं यूज़ करेंगे. ऐसे पेशेंट में हम किसी और तरह का पॉलिशिंग पाउडर यूज़ कर लेंगे. सेकेंड इज ऐसे पेशेंट्स जिनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हों. इट कैन बी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या जिनको वैसे ब्रीदिंग इश्यूज हों या जिनको स्वेलो करने में प्रॉब्लम्स हों. ऐसे पेशेंट्स में हम ये नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे. तो जिन पेशेंट को स्वेलो करने में या ब्रीथिंग इश्यूज हों तो उन पेशेंट में हम ऐसा स्प्रे एयर पाउडर पॉलिशिंग नहीं यूज़ करेंगे. पेशेंट विच हैव कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस should also be not exposed to this air powder polishing, plus immunocompromised patients. Next, don'ts of polishing.
What we have to avoid during polishing is do not abuse the gingival tissue. Polishing करते हुए try to fix to the tooth surface or to the restoration surface. Do not go to the gingival tissue because gingival tissue gets harmed by the polishing brushes, and it can be painful to the patient later on. It can be the cause of gingival ulcers later on because this polishing is electrically driven, and during this polishing the heat produced is dangerous for the gingival tissues. Tooth surface can bear this amount of heat, but the gingival tissue is not going to bear that amount of heat, and it can be damaged. Next is do not generate excessive heat. That you can do by controlling the speed and using moderate pressure. Plus you should not overlook the potential damage to the root surfaces. जैसे आप लोगों को पहले बताया था, cementum and dentin are less harder than the enamel. तो cementum की surface पे, in case when you need to polish or finish the cementum surface, you should not overlook the damage it can cause to the root surface. You should be equally or somewhat more careful when you are polishing cementum. Any questions so far? Second year, any question? Okay. In this slide, you can see this is a complete denture. इसमें जो पिंक कलर की एक्रिलिक प्लेट है, when you fabricate this plate, it is quite rougher and you need to finish it and polish it. Or even after the first insertion, आपके पास पेशेंट वापस भी आ सकता है कि आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड, आई नीड टू गेट इट डन, कि इसका कोई एज मुझे चुभ रहा है या कोई लग रहा है, तो इन दैट केस आपको दोबारा फिनिशिंग पॉलिशिंग करनी पड़ जाती है. तो यू कैन सी ऑन द राइट साइड दिस इज एक्रिलिक बर, जो माइक्रो मोटर में हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद इसे इसकी फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग कर देते हैं. तो बेसिकली एक्रिलिक बर ये एक बड़ा सा बर होता है जो यूज़ करते हैं एक्रिलिक डेंचर्स को फिनिश करने के लिए. लेफ्ट साइड पे आपको एक ब्रश टाइप बर नज़र आ रहा है जिससे बाद में पॉलिशिंग करते हैं. So how are implants cleaned? Implants are also cleaned with air powder polishing units, in which normally sodium bicarbonate powder or a rubber cup is used along with a proper cleaning agent. When polishing, the incompatibility of titanium with other metals and some other chemicals must be taken into consideration during the prophylaxis appointment. इसका मतलब ये है कि आप लोग जब यूज़ कर रहे हो एयर पाउडर पॉलिशिंग, यू शुड बी केयरफुल कि आप कोई ऐसा केमिकल, जैसे इस केस में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ हो रहा है, that does not react with titanium material of the implants. But when you are using any other material for air powder polishing, so you should be careful that that material used in air powder polishing should not react with titanium that is in the structure of implants. Usama, we can use rubber dam for preventing gingival tissue damage. We can surely use रबर डैम. बेसिकली यूज़ ही इसलिए होता है कि आप सिर्फ उस दांत पे फोकस रहो जिस पे आपने काम करना है, और आप जो कुछ उस दांत पे करो वो मटेरियल या स्पिल ना करे आपकी ओरल कैविटी में या आपके जिंजाइवा में ना जाए और आप कहीं और जाके डैमेज ना करे. बेसिकली रूट कैनाल्स में लोग लगाते हैं रबर डैम और रेस्टोरेशंस में
ताकि उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट इरिगेंट यूज़ हो रहा होता है, तो वो इरिगेंट बाकी जिंजाइवल टिश्यू को डैमेज कर सकता है, इसलिए we normally use rubber band over there, but sure we can use rubber band for preventing the gingival tissue damage. In the denture cleanser, full and partial dentures will accumulate plaque and stain and calculus. आपको जो पीछे complete denture दिखाया था, वो वैसा denture या फिर partial denture पेशेंट को जब आपने इंसर्ट करके भेज दी है, उसके बाद पेशेंट कैन कम फॉर द नेक्स्ट विजिट for this finishing or polishing or for any other thing. So you need to do is you should return that denture deposit free at the end of the appointment, because that denture will not be as clean as it was when you inserted it firstly. It will be having plaques and stains and calculus. So it is a dental hygienist's responsibility not only to examine the condition of removable appliances but also to return them to the patient in a deposit-free condition. इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के डेंचर क्लींजर आते हैं, एक डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स भी आती हैं। वो डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स नॉर्मली एंटी फंगल भी हो सकती हैं, और उसको डेंचर को वो वाटर के अंदर प्लेस कर देते हैं और डेंचर क्लीनिंग टैबलेट भी डाल देते हैं, और उस फ्लूइड से वो डेंचर क्लीन हो जाता है। तो जैसे आपके नॉर्मल डेंटिशन इज प्रोन to the effects of calculus and stains, artificial teeth are also prone to it. Next is finishing of composite restoration. ओके, कंपोजिट रेस्टोरेशन को फिनिश करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग वाइट स्टोन और अ फिनिशिंग डायमंड। एक बर होता है जिसके ऊपर वाइट कलर का आपको एक रबड़ सा अपीयर हो रहा होता है, दैट इज वाइट स्टोन बर, or a finishing diamond burr can also be used. Fine finishing is completed with carbide finishing burrs and diamond burrs. Polish with medium disc and finish with superfine disc. आहिस्ता आहिस्ता हम ज़्यादा फाइनर फिनिशिंग की तरफ आते जाते हैं, ज़्यादा फाइनर फिनिशिंग से लेस स्क्रैचेस, और वो लेस स्क्रैचेस अब विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी कम हो जाते हैं, उनसे भी छोटे हो जाते हैं, तो फिर वो हमें नज़र नहीं आते हैं, एंड द सरफेस स्टार्ट्स अपीयरिंग ग्लॉसी. फिनिशिंग स्ट्रिप्स असिस्ट द पॉलिशिंग ऑफ इंटर प्रॉक्सिमल सर्फेसेस. ट्रांसपेरेंट सी कटी हुई छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती हैं, जिसे आपने अगर फॉर एग्जांपल क्लास 2 कैविटी रिस्टोर की है कंपोजिट से, उसको फिनिश करने के लिए स्ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं। ये स्ट्रिप्स पॉलिशिंग कर देती हैं इंटर प्रॉक्सिमल सर्फेसेस से. At the end you can use a polishing paste with a rubber cup. ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ स्टोन बर, वाइट स्टोन. दिस इज द कंपोजिट पॉलिशिंग किट. इसमें आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो नज़र आ रहा है, दैट इज डिस्क शेप बर. इस तरह के डिस्क शेप बर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइजेस के, अकॉर्डिंग टू द सरफेस दैट इज रिस्टोर्ड विद कंपोजिट मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें वाइट स्टोन भी हैं, इसमें डायमंड बर भी हैं, जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये डायमंड बर हैं, और इस तरह से डिफरेंट बर्स आप यूज़ करके कंपोजिट की पॉलिशिंग करते हो और फिनिशिंग करते हो. नो एनी क्वेश्चन सेकेंड ईयर regarding finishing and polishing?
So can you all tell which mechanism is used for finishing and polishing during dentistry? Yes, abrasion, and there are two types of abrasion: two body abrasion and three body abrasion. And rest all these abrasives which are used. Okay, so this was the end of today's lecture. आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट 27th को आ रहा है, 27 जून.